And today we are diving into a topic that every researcher secretly struggles with: how to make data not just correct but compelling. To guide us through this, we are honored to have with us Dr. Javeria Mansoor, the Chief Resident in Community Medicine at the Aga Khan University Hospital. Dr. Javeria is not only a passionate public health advocate and aspiring researcher, but also someone who brings creativity into science. Blending her expertise in research, medical education, and event content creation, she is a proud winner of research poster competitions, which says a lot about her skill in turning complex ideas into clear winning visuals. Her work focuses on improving community health with a special emphasis on non communicable diseases and innovative health technology. Beyond that, she loves mentoring students and helping them grow into confident professionals. In today's session, Dr. Javeria will take us beyond the basics of graphs and charts, showing us how to transform our findings into visuals. And don't just inform, but also engage and inspire. So, everyone, please help me in joining Dr. Javeria and giving her a warm welcome. Thank you. On to you, Dr. Javeria. Thank you, Varisha. So, Varisha has already introduced me, so there is nothing left for me to introduce myself. But for this particular session, I'll remain bilingual to make you understand in a better way what we are going to discuss. So, although the topic of session is data visualizations beyond pie and bar graphs, but before going beyond, we need to know what are the basics. So, I'll uh, touch upon basics very briefly, then I'll move towards the advanced techniques of data visualization. So I hope this session turns out to be fruitful for all the students. So let's start. So objectives are to understand the fundamental principles of data visualization, how to present that, and also how to make visuals that are all not only easy to interpret but also exciting for the readers of many journals. So now, what are data and its types? So students can answer in the chat box. I'll be reading the chats. So I'll try to keep this session a bit interactive, so I get an idea that whether students are with me or understanding or not. So can somebody tell what are types of quantitative data and what are types of qualitative data? And at any point, if my voice is not very audible or muffled, you can let me know. So, data is information that we collect through questionnaires. Many of you students must be doing research as part of their curriculum or due to their personal interests. So we know that the basic classification of data is quantitative and qualitative. But within quantitative and qualitative, what are the further types? Can somebody put their answers in the chat box? So I know that you guys are with me. Yes, so Sayyid Irtiza Imam is saying continuous and dichotomous for quantitative. Okay, so continuous is correct. Dichotomous is for qualitative. Discrete. Okay, discrete and continuous is for quantitative. Aska is saying discrete. Okay, right. So thank you for answering me. So that is correct that quantitative is further divided into discrete and continuous, and categorical is divided into nominal and ordinal. Now, these nominal data can be dichotomous, right? So, what is, in the simple terms, what are these? तो डेटा जो है उसमें अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो लोगों के नाम, ठीक है, लोगों का जेंडर, ये सारी क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है.
अब इसमें नॉमिनल डेटा क्या हो सकता है, लोगों के नाम, शहरों के नाम, ये सारे नॉमिनल डेटा है। और ऑर्डिनल डेटा क्या हो सकता है, कोई ऐसी चीज जिसका रैंक हो, ठीक है। वो ऑर्डिनल डेटा है, जैसे कि कितने लोग जो है वो सिवियर बर्न के थे, कितने मॉडरेट बर्न के थे, और कितने लो डिग्री बर्न के थे। तो इसमें कैटेगरी बन रही है ऑटोमेटिकली। या कितने जो हैं वो हाई स्कूल एजुकेटेड थे, कितने सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड थे, और कितने प्राइमरी स्कूल एजुकेटेड थे। तो इसमें एक ऑर्डर है, तो ये ऑर्डिनल डेटा है। लेकिन कितने लोग फॉर एग्जाम्पल सिंधी हैं, पंजाबी हैं, या बलूची हैं, तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि नॉमिनल डेटा में कोई भी एक ग्रुप दूसरे से ऊपर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सिंधी या बलूची पंजाबी से ऊपर नहीं है, ठीक है, तो सब बराबर हैं। तो इस तरह ये नॉमिनल में आते हैं। तो ये तो क्वालिटेटिव डेटा की बात हुई। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का आप लोगों ने जिक्र किया था। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या चीज हो सकती है, जैसे हाइट और वेट कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता। डिस्क्रीट ऐसी चीजें जो कि होल नंबर हो सकती हैं, और कंटिन्यूअस या डेसिमल्स में नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन के कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो वो या तो 3 बच्चे हो सकते हैं या 5 बच्चे हो सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि 5.5 बच्चे, ठीक है, या 1.5 बच्चे हों। तो जो ऐसी चीजें जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वो डिस्क्रीट होता है। और जिसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं, मेरी हाइट जो है वो 45.5 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, डेसिमल आ सकता है, तो ये कंटिन्यूअस डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा से अगर स्टार्ट करें विजुअलाइजेशन की बात, तो कॉमन मेथड जो आप लोग ने पढ़े होंगे या आपको पता होंगे वो क्या है, लाइन चार्ट, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, या हिस्टोग्राम। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि पहले तो कॉमन मेथड्स क्या हैं वो हमें पता हो, फिर हम एडवांस मेथड्स को समझ सकेंगे। तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला हिस्टोग्राम है। इसमें जो है सिंपल डेटा को जो है वो प्लॉट कर दिया गया है बाय देयर फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो 10 से 15 के बीच में 3 लोग आए थे, तो ये 3 की फ्रीक्वेंसी है। या जो 5 से 10 के बीच में से कोई एक बंदा आया था, तो ये 1 की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इस साइड पे है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पे लोगों के वेट है, ठीक है। तो ऐसे डेटा को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि बार्स के बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डेटा के साथ शो करता है, उनको ग्रुप करके, ठीक है। तो ये जो है ये एक नॉर्मल बार है जिसमें बीच की वैल्यू ज्यादा है और दोनों साइड पे कम वैल्यूज हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा होती, यहाँ पे कम होती, या यहाँ ज्यादा होती बाद में कम होती, तो वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हमें मीन बताता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बता सकता है, इस तरह की चीजें हैं। या डेटा की नॉर्मेलिटी बताता है, ये चीजें हमें हिस्टोग्राम से पता चल सकती हैं। और फ्रीक्वेंसी तो ज़ाहिर है पता चलती है। इसके बाद एक और तरीका क्वांटिटेटिव डेटा को देखने का है बॉक्स प्लॉट। अब क्वांटिटेटिव डेटा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 चीजें होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन तो हमने देखा कि हिस्टोग्राम से हमें पता चल सकता है अगर हम नॉर्मल की लाइन डालते हैं। अब मीडियन जो है वो बॉक्स प्लॉट से पता चलता है। और बॉक्स प्लॉट का दूसरा नाम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी है। इसको पढ़ते कैसे हैं? कि एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। अब इसके अंदर क्वार्टाइल्स होते हैं। डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्वार्टाइल 1 से लेके क्वार्टाइल 2 फिफ्टी और किसी परसेंट ने ऑफ द बताई नहीं डेटा है। बिरयानी। जी। कोई वकार साहब कुछ कह रहे? अच्छा। और क्वार्टाइल 2 से क्वार्टाइल 3, ठीक है। और Q3 से लेके Q1 का जो एरिया है, ये पूरा बॉक्स का एरिया, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, फिर ये जो बॉक्स के आगे या पीछे ये जो लाइंस हैं, इसका एक जो लिमिट है, ये मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स के अलावा ये जो लाइन है दोनों साइड पे, ये विस्कर कहलाती है, ठीक है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम आपको बता रही है। और अगर कोई वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के भी बाहर है, जैसे ये वाली वैल्यू है या ये वाली दो और वैल्यू है, तो ये वैल्यू आउटलायर होती है। तो एक बॉक्स प्लॉट में आपको काफी सारी चीजें पता चल गई। एक तो मीडियन
जो क्वार्टाइल 2 होता है वो मीडियन की पोजीशन पे होता है, यानी 50% ऑफ द डेटा या डेटा की जो सिर्फ एग्जैक्टली मिड वैल्यू है वो यहाँ पे क्वार्टाइल 2। ठीक है, उसके अलावा हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज पता चल जाती है, Q1 Q3 पता चलता है, मिनिमम मैक्सिमम पता चलता है, और आउटलायर पता चलते हैं। ये वाली चीजें सारी बॉक्स प्लॉट के थ्रू पता चलती है। और बॉक्स प्लॉट की मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ये है बॉक्स प्लॉट। अब इसमें बॉक्स प्लॉट में इन्होंने क्या शो किया है कि टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स इन्होंने चेक किए। फॉर एग्जांपल लेक्चर बेस्ड लर्निंग या केस बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या टीम बेस्ड लर्निंग, और उन सब के अगेंस्ट इन्होंने स्टूडेंट्स का कोई टेस्ट लिया और उनके स्कोर्स लगा दिए। कि अब जैसे लेक्चर बेस्ड लर्निंग में जो मीडियन बन रहा था वो 25 बन रहा था, और केस बेस्ड लर्निंग में भी मीडियन 25 बन रहा है। इसी तरह ये जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है इसमें मीडियम थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, 25-30 के बीच में। और जो लास्ट मेथड है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इसमें सबसे ज्यादा मीन बन रहा है, यानी ये सबसे बेहतर मीडियन जो है वो मेथड 4 टीचिंग से आ रहा है। तो ये तरीका होता है एक बॉक्स प्लॉट का। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अभी तक जो था हिस्टोग्राम में या फिर बॉक्स प्लॉट में वो एक वेरिएबल था, अब हमारे पास दो कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं, तब हम स्कैटर प्लॉट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, बस जो दो वेरिएबल थे उनको आप एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एक को वाई एक्सिस पे रखते हैं, एक को एक्स एक्सिस में। अब इसमें ये चीज है कि वाई एक्सिस पे किसको रखना है और एक्स एक्सिस पे किसको रखना है। तो इसका तरीका ये है कि जो आउटकम वेरिएबल हो वो वाई एक्सिस पे होता है, और जो प्रिडिक्टर वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, किस तरह से, अब नंबर ऑफ स्टडी आवर्स है, यानी कि कितने घंटे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनका असर जो है वो जीपीए पे या जो उनके मार्क्स हैं उस पे कितना पड़ रहा है। ये एक सिंथेटिक डेटा है, ये रियल डेटा नहीं है। सारे इसमें जो ग्राफ्स हैं मैंने सिंथेटिक ही डाले। तो वो ये स्कैटर प्लॉट शो कर रहा है कि फर्स्ट स्टूडेंट का जो है वो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स 1 से 5 के बीच में, फॉर एग्जांपल ये 3 थे, और उसके जो जीपीए या स्कोर आए थे वो भी जो है ना वो लो थे। तो पहले स्टूडेंट का यहाँ पे आ गया, इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे आ गया, तीसरे का यहाँ पे, इस तरह से ये स्कैटर प्लॉट कंस्ट्रक्ट हुआ है। और हमें रफली ऐसा लग रहा है कि जो लोग कम देर पढ़ रहे हैं उनकी जीपीए कम आ रही है, फिर जो थोड़ा ज्यादा देर पढ़ रहे हैं उनकी थोड़ी सी बढ़ी है, फिर जो और ज्यादा देर पढ़ रहे हैं उनके स्कोर्स और बेहतर हो रहे हैं। तो ये कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्कैटर प्लॉट बनता है, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल और नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो है उनका असर जीपीए के ऊपर होगा, यानी कि ये प्रिडिक्टर या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आउटकम या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। अच्छा, नेक्स्ट है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम जो है वो भी इसी तरह है कि दो वेरिएबल्स होंगे, लेकिन यूजुअली एक वेरिएबल इसमें टाइम होगा या ट्रेंड होगा, ठीक है, और दूसरा कोई और वेरिएबल होगा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग सालों में जो डिफरेंट मेडिसिन हैं उनकी बारे में इन्होंने देखा है कि परसेंटेज सेल्स कितनी है, कौन सी मेडिसिन की सेल का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पैरासीटामोल है तो उसकी नंबर ऑफ सेल्स ये पर 1000 है, ये मतलब 10 का मतलब 10,000 इस तरह करके है। ठीक है, तो ये पहले 2020 से 2021 पे डिक्लाइन पे था, फिर एकदम राइज हुआ, फिर थोड़ा ड्रॉप आया, फिर थोड़ा सा राइज हुआ। और अगर ट्रेंड को देखें तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फ्लॉक्सिटीन का अगर हम देखें तो ट्रेंड ओवरऑल बढ़ रहा है, और एस्पिरिन का भी देखें तो ट्रेंड ओवरऑल बढ़ रहा है। तो ये जो चीज है इसमें हमारे पास एक तरह से आप देखें तो तीन वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल हो गया टाइप ऑफ मेडिसिन, एक वेरिएबल हो गया टाइम, और एक वेरिएबल हो गया सेल्स। तो तीन वेरिएबल्स जो हैं उससे हमने लाइन चार्ट बना लिया। स्कैटर प्लॉट में हमारे पास दो वेरिएबल्स थे। अच्छा, अब ये तो सिंपल टेक्निक्स थी ना जो कि यूज होती हैं और आप लोग यूज कर भी चुके होंगे या पेपर्स में पढ़ा होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मीन मीडियन के अलावा थर्ड चीज होती है मोड। तो मोड को किस तरह विजुअली प्रेजेंट करें, तो मोड को प्रेजेंट करने का तरीका है वर्ड क्लाउड।
ठीक है। और वर्ड क्लाउड किस तरह से बन सकता है वो हम अभी जो सेशन है इसके एंड में एक दफा मैं आपको दिखा भी दूंगी। लेकिन वर्ड क्लाउड की एग्जांपल ये होती है, इसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ स्टूडेंट से ये पूछा गया कि अपने मेंटल हेल्थ के को बेहतर करने के लिए वो कौन सी चीज या कौन से इंटरवेंशन या अपनी लाइफ में क्या चीज लेके आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा जो वर्ड होगा वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स ने बोला होगा। क्या मतलब, अब देखिए जैसे मेडिटेशन ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, उसका साइज बड़ा है, यानी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मेडिटेशन का वर्ड या एक्सरसाइज या रूटीन या क्वारंटीन सपोर्ट ग्रुप इसके नाम लिए हैं। ठीक है। उसके बाद फैमिली, इन चार से थोड़ा सा छोटा फैमिली है, यानी कि इसके बाद सेकंड पे लोगों ने फैमिली का नाम के लिया है, या फ्रेंड्स, इससे फैमिली और फ्रेंड्स तकरीबन एक जैसे हैं साइज में। उसके अलावा इनसे भी जो छोटे हैं वो सेल्फ केयर इनसे छोटा लग रहा है, योगा इनसे थोड़ा और छोटा है, रूटीन और छोटा है, प्रेइंग, सोशल इंटरेक्शन, स्टेप्स ये और छोटे हैं, और बाकी और छोटे छोटे यानी कि मे बी ये जो बहुत ही छोटे हैं जैसे विंडो या गोल्स या स्लीप या जर्नल, ये एक एक या दो दो लोगों ने लिखा होगा मे बी। फूड, तो जितना कम कोई बंदा लिख रहा है वो छोटा होते जा रहा है, जितना बार बार लोग कह रहे हैं वो बड़ा हो रहा है, तो इस चीज को हम वर्ड क्लाउड कहते हैं। और मोड में क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है वही मोड होती है, तो ये मोड हमें इस तरह से हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो कि है रेडार चार्ट। अब रेडार चार्ट में क्या है कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो बार चार्ट की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा एक विजुअली थोड़ा ज्यादा अपीलिंग और यूनिक होता है। इसको अभी हम कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो भी देखेंगे। इसका एक और नाम होता है स्पाइडर वेब चार्ट। ठीक है, तो रेडार चार्ट भी इसको कहते हैं, स्पाइडर वेब चार्ट भी कहते हैं। ये यूजुअली 0 से 5 के बीच में ही होता है। और इसमें क्या, इस पर्टिकुलर जो चार्ट है इसमें क्या हो रहा है कि तीन स्टूडेंट्स हैं, ट्रिलबी, मर्डॉक और व्हीलिंग, और इनसे पूछा गया है कि इनकी क्वालिटीज क्या हैं, और उनको ये रेट भी करें कि 0 से 5 तक ये अपने आप को इन क्वालिटीज में कितना रेट करते हैं। तो जो ट्रिलबी है इसने अपने आप को क्रिएटिविटी में 4 रेट किया हुआ है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लाइन है वो 5 है, इसके अंदर वाली ये 4 है, इसके बाद ये 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और 0 है। तो ये ट्रिलबी ब्लू है, इसने अपने आप को 4 किया है क्रिएटिविटी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसने अपने आप को 2 किया हुआ है। इसी तरह जो मर्डॉक हैं इन्होंने अपने आप को कम्युनिकेशन में 4 किया हुआ है, और टीम प्लेयर में भी 4 किया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से रेडार चार्ट। अब व्हीलिंग ने अपने आप को हर चीज में थोड़ा लो ही रखा है, अगर आप देखें पंक्चुअलिटी में भी वो 1 पे हैं, इसमें वो 2 पे हैं, टीम प्लेयर में, बाकी चीजों में भी वो 1 पे ही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है बबल चार्ट। अब ये आपको देखने में बहुत ज्यादा स्कैटर प्लॉट की तरह लग रहा होगा, क्योंकि स्कैटर प्लॉट में भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी प्रिडिक्टर और आउटकम। लेकिन इसमें यूनिक चीज क्या है कि स्कैटर में यहाँ पे डॉट्स के बजाय बबल बने हुए हैं, और इन बबल का साइज देखें बड़ा या छोटा है। तो अब ये स्कैटर प्लॉट हमें सिर्फ दो चीजों का रिलेशनशिप दिखा रहा था, बबल चार्ट में हम दो से ज्यादा चीजें प्लॉट कर सकते हैं। जो तीसरी वेरिएबल है वो साइज ऑफ द बबल पे से शो होगा। किस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो दवाइयां हैं, ई वीटा और थोराफ्लेक्स कोई दवाई का नाम है, ठीक है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि एज जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से 30 डे मोर्टेलिटी इस दवाई को खाने से के बाद कितनी है। ठीक है, तो अब ऐसा शो हो रहा है कि थोराफ्लेक्स जो लोग खा रहे हैं उनके मोर्टेलिटी कम है लेकिन उनकी एज भी कम है, और ई वीटा जो लोग खा रहे हैं उनकी एज ज्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। अब ये जो बबल बड़े या छोटे हैं ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जितना ज्यादा बबल बड़ा है उतना ज्यादा अमाउंट में लोगों ने ई वीटा खाया, और जितना बबल छोटा है तो लोगों ने उसकी डोज कम खाई, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बबल चार्ट में हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि हम एक और वेरिएबल को साइज ऑफ द बबल के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और इसका एडवांस तरीका है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्री मैप।
ट्री मैप भी आजकल काफी ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने शायद देखा भी हो। एक बहुत यूजफुल वेबसाइट है IHME की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स की, जो कि विज हब के नाम से है, जिसमें वर्ल्ड वाइड डेटा मौजूद है। किसी भी चीज का आपको चाहिए हो, मैं दिखा भी सकती हूँ आपको। तो वो ट्री मैप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ट्री मैप क्या होता है? सिंपल डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है। इसमें जो डब्बे बड़े होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जो डब्बे छोटे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम। फॉर एग्जांपल, डेली फूड सेल्स का ये है। अब ये ब्लू में ब्रेकफास्ट है, ऑरेंज में लंच है। अब ब्रेकफास्ट में अगर वॉफल्स और एग्स के बड़े हैं और पैनकेक्स का छोटा है, यानी वॉफल्स और एग्स की सेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू पैनकेक, और पैनकेक से भी कम है कॉफी की। इसी तरह लंच में सैलेड और सैंडविच की सेल ज्यादा है और कॉफी की कम है। तो ये ट्री मैप के थ्रू भी जो है वो डेटा क्वांटिटेटिव शो किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर। अब क्वालिटेटिव में सिंपल पाई चार्ट और बार ग्राफ का तो आपको पता होगा, ठीक है। बार ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, तो अरे आप उसमें अंतर्गत में भेज सकती हो ताकि लोग ज्वाइन कर लें। पाई चार्ट जो है इसमें ये पाई चार्ट ये शो कर रहा है कि जो चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो कौन सी डिजीज की वजह से आ रहे हैं। तो यूजुअली अंडर 5 में नमूनिया के केस सबसे ज्यादा होते हैं, और सेकंड नंबर पे डायरिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मीजल्स है, एयर इन्फेक्शन है और थ्रोट इन्फेक्शन है। तो पाई चार्ट में याद रखने वाली बात यह है कि जब आप सारी परसेंटेजेस को ऐड करें ना, तो टोटल आंसर 100 होना चाहिए। यानी कि पाई चार्ट तभी बन सकता है जब वो किसी 100 में से उसका कोई स्लाइस हो। अगर डेटा ऐसा है कि सब लोगों ने सबका आंसर दिया, जैसे रेडार चार्ट में था कि एक बंदा अपने आप को कम्युनिकेशन पे भी अलग रेटिंग दे रहा है 1 से 5 के बीच में, और टीम प्लेयर पे भी 1 से 5 के बीच में अलग रेटिंग दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन में कोई ज्यादा है तो उसकी रेटिंग अफेक्ट कर रही है टीम प्लेयर को। लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्यादा होने से, नमूनिया ज्यादा होने से मीजल्स कम हो रहा है। ठीक है, यानी 100% इसको पूरा करना होना होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज होती है वो पाई चार्ट में होती है। अब नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा एडवांस, ठीक है, ये तो हमने सिंपल पढ़ा था। तो अब पाई चार्ट की एक एडवांस फॉर्म है डोनट चार्ट। इसको समझना तो वैसा ही सेम ही है कि इसमें ये दिखा रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कि उनके ख्याल से जितने भी टिक्स हैं या फ्लाइज हैं उनमें सबसे ज्यादा उनके घर पे क्या है और कौन से उनको तंग कर रहे हैं। तो मॉस्किटो लोगों ने सबसे ज्यादा कहा, 44% लोग कह रहे हैं कि मॉस्किटो सबसे ज्यादा उनके घर में है या उनको परेशान करते हैं। सेकंड नंबर पे सैंड फ्लाई, और फिर माउस टिक या हाउस फ्लाई। तो ये भी पार्ट ऑफ होल ही होता है, इसको भी जमा करेंगे आप तो 100% ही बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा पिक्टोग्राम के थ्रू भी शो किया जा सकता है। अब जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक क्लास है जिसमें 60% जो है वो फीमेल्स हैं और फॉर एग्जाम्पल 4% मेल्स हैं। तो ये मैं लिख के बताऊं उसके बजाय मैंने येलो जो है फॉर एग्जाम्पल मेल को कर दिया और पर्पल फीमेल को कर दिया। तो ये एक पिक्टोग्राम है। इस एक और एडवांस फॉर्म जो है वो बार ऑन अ मैप है। अब मैं सिंपल लिख देती कि कराची में 80% लोग कह रहे हैं कि बारिश जो है वो हेल्थ रिस्क है। लाहौर में 30% लोग कहते हैं, क्वेटा में 40% और इस्लामाबाद में 15%। तो मैं सिंपल ये टेबल पे लिखूं या सिंपल बार ग्राफ बनाऊं, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा आपके ख्याल से बेहतर नहीं है कि मैं एक मैप के अंदर जहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा लोकेटेड है वहां पे ही बार डाल दूं। तो ये बार ऑन अ मैप कहलाता है, कि बार चार्ट ऑन अ मैप। मैप के ऊपर मैंने बार्स बना दिए, और ये मैंने सिंपल पावर पॉइंट पे बनाए हैं, कोई खास अलग से कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है। अच्छा, एक एडवांस चीज है जिसको कहते हैं पिक्टोरल बार ग्राफ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि है ये बार ग्राफ ही, लेकिन इसमें पिक्चर्स डाली हुई है बार के बजाय। यहाँ पे बार कितनी पेप्सी की कितनी या फैंटा की कितनी सेल है, उसमें बार के बजाय पेप्सी की ही तस्वीर है। इसी तरह पास्ता कौन सी कंट्री में कितना प्रोड्यूस होता है, तो इटली सिर्फ लिखा हुआ नहीं, इटली का फ्लैग भी है और पास्ता उसमें बड़ा भी है। और इसके कंपैरिजन में यूके में अगर कम है पास्ता की सेल, तो ये जो बॉक्स है पास्ता का, थैली है, इसमें पास्ता कम क्वांटिटी में भी है और यूके का फ्लैग भी है।
तो ये थोड़ा और विजुअली अपीलिंग हो गया। इस तरह यहाँ पे आप देखें कि ग्रॉस जो है वो कितना प्रोडक्शन टन पर एनम है। तो इसमें ये कोई हर्ब है इसकी बहुत ज्यादा है किसी कंट्री में, और कैरेट की कम है, पोटैटो की कम है। इसी तरह ये सीरियल इन्होंने शो किया। तो ये एक और एडवांस टेक्निक है। अच्छा, कॉम्बो चार्ट में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स को एक साथ एक ही ग्राफ में शो किया जा सकता है। जैसे वैक्सीन कवरेज, एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि हर साल बढ़ रही है, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल है, ये एयर है। और इसमें क्या होता है कि मीजल केसेस जो है ना वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो वैक्सीन कवरेज जो है उसको आपको रीड करना है इस वाले वाई एक्सिस पे, उल्टे हाथ पे, यानी 70% कवरेज, 80% कवरेज। और जो मीजल्स के केसेस हैं उसको आपको यहाँ पे रीड करना है कि स्टार्ट हुए थे 3500 केसेस से और कम होते होते 500 केसेस पे आ गए। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जिस तरह वैक्सीन ज्यादा लोग लगा रहे हैं, इस तरह मीजल के केसेस कम होते जा रहे हैं। तो हमने एयर और दो अलग अलग वेरिएबल्स को एक ही ग्राफ में शो कर दिया। तो ये कॉम्बो चार्ट हो गया। अच्छा, एस्थेटिक्स एक और चीज है जिसका काफी ख्याल रखने की जरूरत होती है। अब इसमें क्या आ जाता है कि कलर्स आपके ग्राफ के, अब जैसे ये मेरा ही बनाया हुआ ग्राफ है, उसमें आप देखें कि मैंने कलर स्कीम ऐसे रखी है कि स्टार्टिंग से लेके नीचे तक कलर जो है वो उसका ग्रेडिंग बढ़ती जा रही है। हायर पर्पल, लाइट पर्पल से वो डार्क पर्पल होते जा रहा है। ठीक है, तो ये सेशन यहाँ तक था। इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आप लोगों के लिए ये कुछ रिसोर्सेज हैं। तो इसमें डेटा टू विज है, डेटा विज कैटलॉग है, और सबसे ज्यादा जो मैं यूज करती हूँ dataviz.project.com है। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको ये और भी किस्म के बार ग्राफ्स और कौन से डेटा पे कौन सा ग्राफ बन सकता है ये शो करेंगे। और वो जो पिक्टोरल बार चार्ट मैंने शो किया था उसको कैसे बनाते हैं उसका एक ये लिंक भी है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और वर्ड क्लाउड बनाने की एक वेबसाइट है freewordcloudgenerator.com, तो इसकी भी मैंने पिक्चर यहाँ पे शेयर कर दी है। स्टार्टिंग विद द फ्री वर्ड क्लाउड, thank you. So starting with the free word cloud generator. So you just have to write freewordcloudgenerator.com on the Google, and this website will show up. Then you can click on free word cloud generator, this button. It will take you over here. So when you reach over here, you can see already a template is ready for a word cloud, and you can edit this template by clicking these words. For example, if I click edit word, you can adjust the frequency and type in the word. For example, I want to change the frequency of data. Currently it is 5, I can change it, or I can change the words, or I can paste my own words, upload my Excel file, first convert Excel into CSV, then import over here. I can change the colors and I can change the font, then I can download it. So currently its number of words is 50, I can adjust that too. So if you make an account on this particular website, this kind of word cloud can be generated. So now I'll move to the Excel file. Yeah. So first of all, as we only have now 15 minutes left, so we'll just see some examples of how to create particular charts on Excel that I showed you in the presentation. So this is a data, and this data is a qualitative data. Why? Because the smoking status is stored in the variables of never smoked, past smoker, and current smoker, right? So for this particular data set, we can see the total of this data set is what? Total is 100, right? So whenever total is 100, then we can apply pie chart or donut chart. So I'll select this data and I will go to insert, and then here is a button called recommended charts. So I can choose this also and I can choose this also, right? So this time I'm going towards the recommended charts and it is already showing me a pie chart. So I'll click OK. Then once pie chart is over here, then I can change the chart title. I can make chart title about smoking status of participants.
status of students, for example, right? And then I can also adjust if I come over here, I can also change the colors. If I like this color scheme, I can change like this, or I can also adjust if I want to show the data labels outside and or data call out like this. So these are some techniques of, improving a simple pie chart. I can also create a donut chart. Once again, I select the data, then go to insert, click this, and here is a donut. And similarly, I can, change how it looks. Maybe this, maybe this. If I choose this one, then I can change colors like this. I can edit or remove the chart title if I want. So this is how to create a donut chart or a pie chart. Then moving towards next. Now this is a particular data set in which we surveyed community people and asked them what are their top priorities or their top needs. And they have to rank them out of 5. So 5 out of 5 rank was given to clean water, then 4 to hospitals, to access of food, 4 need of having some recreational centers, for example, a marriage hall or something like that, or some activity, for example, yoga hall. So recreational centers was 3, and the school need was 5. So this particular data set is very perfect for creating a radar chart. So if I go over here, then I can click over here, and here is the radar chart. You can also get this by, I hope, okay, so one student is asking what is importance of word cloud. So does Saral has any question? सारा का कोई सवाल है? अच्छा, ओके। तो एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि वर्ड क्लाउड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वर्ड क्लाउड की इंपॉर्टेंस बस ये है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है या बार बार आ रही है या लोग उसको बार बार बोल रहे हैं, वो वर्ड क्लाउड शो करता है। जो कि मोड होता है ना, मीन मीडियन मोड। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन पॉपुलर है या सबसे ज्यादा क्या चीज लोगों को पसंद है, वो वर्ड क्लाउड शो करेगा। और आप लोग पब्लिश पेपर्स में अगर देखें तो वर्ड क्लाउड्स भी पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो मैंने खुद ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें लोगों ने वर्ड क्लाउड भी पब्लिश किए हैं। अच्छा, तो हम वापस आ जाते हैं रेडार चार्ट में। तो ये रेकमेंडेड चार्ट पे भी अगर हम जाते हैं और फिर ऑल चार्ट दबाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि रेडार चार्ट का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो मैं ये भी बना सकती हूँ, एक ये भी बना सकती हूँ। तो ओके मैंने किया, तो ये एक रेडार चार्ट बन के आ गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 0 से लेके 5 पे क्लीन वाटर और स्कूल की रैंकिंग 5 है, और फूड की, हॉस्पिटल की 4 है, और रिक्रिएशन सेंटर की 3 है। ठीक है, तो ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग तरीका है किसी चीज की नीड्स को या रैंकिंग को प्रेजेंट करने का। ठीक है, और इसके भी आपके सिमिलरली यहाँ पे चार्ट डिजाइन और चार्ट फॉर्मेटिंग में जाके आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाह रही कि ये ब्लू दिखे, ठीक है, मुझे इसका कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन पसंद है, तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, या मैं इसका डिजाइन कुछ, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड में ये ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, कलर स्कीम्स यहाँ पे और भी होती, तो ये इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट पे। तो ये जो है कुछ हाइट इन मीटर या सेंटीमीटर कुछ लोगों की दी हुई है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिमिलरली इंसर्ट में गए। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, बार्स का, लेकिन मुझे हिस्टोग्राम चाहिए, तो ये रहा ऑप्शन हिस्टोग्राम का। तो ये इस तरह से हिस्टोग्राम बन सकता है, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह बॉक्स प्लॉट भी हम बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, फिर से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और रिकमेंडेड चार्ट में जाके ऑल चार्ट में यहाँ पे बॉक्स एंड विस्कर लिखा हुआ, तो ये मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स प्लॉट बन के आ गया। इसको भी हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मैटरनल मोर्टेलिटी का डेटा है डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान का।
तो इसको हम, ये काउंट डेटा है, इसमें वैल्यूज हैं पर 100,000 की, ठीक है, परसेंटेज नहीं है। तो इसमें हम ट्री मैप बनाना देख रहे हैं। तो ट्री मैप के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको दबाया तो ट्री मैप आ गया। अब ट्री मैप में आप लोग कुछ चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि कराची क्वेटा तो लिखा आ रहा है, लेकिन इसके साथ इसकी वैल्यू भी लिखी है। तो यहाँ पे मैंने डेटा लेबल्स में शो मोर ऑप्शन में मैं गई, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इसमें मैंने वैल्यू पे टिक कर दिया, तो अब आप देखें कराची के आगे 207 भी लिखा आ रहा है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया। और चार्ट टाइटल पे मैंने टाइटल दे दिया मैटरनल डेथ इन सिटीज, ठीक है। तो इस तरह ये एक ट्री मैप बन गया। कैन वी मेक अ फॉरेस्ट प्लॉट एन एक्सेल, ये डेल के नाम से एक स्टूडेंट है, इनका क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल, एक्सेल जो एक्सेल पे फॉरेस्ट प्लॉट बन सकता है। अच्छा, हिरा का सवाल है। तो लेकिन आप लोग अगर मेटा एनालिसिस वाले फॉरेस्ट प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो एक्सेल की एक जो है वो बुरी बात या खामी आप कह लें, वो ये है कि मेटा एनालिसिस वाले फॉरेस्ट प्लॉट के एंड में एक होता है डायमंड, जो कि पूल्ड एस्टिमेट शो करता है। तो वो डायमंड एक्सेल पे नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी ऊपर के जो बार्स होते हैं ना, बाकी सारे वो एक्सेल पे फॉरेस्ट प्लॉट वो बन सकता है। तो आप अगर चाहती हैं हिरा, तो एक यूट्यूब की वीडियो है, बहुत ही आसान सी है, जिसमें उन्होंने एक्सेल पे फॉरेस्ट प्लॉट बनाना सिखाया है, वो मैं शेयर कर सकती हूँ आपसे। लेकिन अगर आपको मेटा एनालिसिस के लिए फॉरेस्ट प्लॉट बनाना है, तो वो डायमंड नहीं आएगा, तो फायदा नहीं है एक्सेल पे बनाने का। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनुअल परसेंटेज चेंजेस हैं, यानी कि मलेरिया के केसेस, फॉर एग्जांपल ये रॉ डेटा है जिसमें मलेरिया के केसेस 2022 में कितने थे और 2023 में कितने थे, वो हैं। और हमने फिर इसकी कैलकुलेट की परसेंटेज चेंज, कि परसेंटेज चेंज क्या है 2022 से 23 में। अब परसेंटेज चेंज का डेटा इस तरह से हमने बना दिया। अब इस डेटा ये टेबल के फॉर्म में मैं शो करूँ इस, अब मुझे इसमें कोई बार ग्राफ या वो नहीं डालना, टेबल ही लगानी है। लेकिन टेबल को भी तो और खूबसूरत बनाया जा सकता है ना, वो कैसे? कि आप ये देखें कि टेबल में मैंने एक दूसरी टेबल कंस्ट्रक्ट की, जिसमें मैंने सिर्फ ये एरोज डाल दी, कि जिसमें परसेंटेज चेंज, यानी कि 2022 से 23 से केसेस ज्यादा हो गए थे मलेरिया में, उसमें ग्रीन एरो अप जा रहे हैं। जिसमें केसेस बराबर रहे थे उसमें येलो एरोज साइड पे जा रहे हैं। और जब केस कम हो गए तो वो रेड एरोज नीचे जा रहे हैं। तो ये कैसे लाते हैं, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए। अब इसमें देखिए डिफरेंट चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ये चूज करते हैं तो देखिए बार्स कुछ बन के आ रहे हैं, ठीक है, ये कलर्स चेंज हो गए बार के। बार को आप सॉलिड फिल भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें भी इसमें होती है। कलर्स के ग्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें चेंज नेगेटिव में जा रहा है उसमें रेड है, जिसमें पॉजिटिव में जा रहा है उसमें ग्रीन है, ये भी ऑप्शन है। लेकिन हमने वो आइकन वाला करना है, तो इसमें देखिए आइकन सेट, आइकन सेट में ये एरोज भी हैं, ये इस तरह की भी हैं, ठीक है। अब मुझे अपना रूल चाहिए, तो मैं मोर रूल पे गई। मैंने ये वाला आइकन मुझे सबसे अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला चाहिए, ये मैंने लिया। और यहाँ पे वैल्यू पे मुझे 1 रखनी है, तो मैंने 1 रखा, और इसको मैंने 0 कर दिया, और टाइप में मैंने कर दिया नंबर। तो ये कुछ सिमिलर इस तरह का बन के आ गया, यानी ये ऊपर के एरोज और नीचे के एरोज जो है वो आ गए, जिससे हमें पता चल रहा है कि डेटा, मलेरिया के केसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या हुआ है। तो टेबल भी थोड़ी सी और बेटर हो गई। और मैंने एक पब्लिश आर्टिकल देखा है जिसमें उन्होंने इस तरह से, जो यहाँ पे ये जो मैंने एरोज डाले ना, तो टेबल के अंदर उन्होंने इस तरह के एरोज भी डाले थे। अच्छा, एक हम कॉम्बो चार्ट ट्राई कर लेते हैं। तो कॉम्बो चार्ट के लिए क्या करना है कि इसी तरह हमने डेटा को सिलेक्ट किया, और इंसर्ट में गए, रिकमेंडेड में गए। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी देता है, लेकिन हम कॉम्बो पे जाएंगे, कॉम्बो चार्ट। अब कॉम्बो में हमने फर्स्ट को वैसे ही रहने दिया, सेकंड को हमने सेकेंडरी एक्सेस को क्लिक कर दिया, और ये एरिया वाला हमें चाहिए।
जी, तो ये आप देखें, ये बन गया। ओके, मैंने किया। अब इसमें ये वही वाला चार्ट बन के आ गया आपके पास, जिसमें ये शो हो रहा है कि जितनी ज्यादा वैक्सीन कवरेज बढ़ रही है, उतने ज्यादा मीजल्स के जो केस हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 है, ये ईयर्स हैं। ठीक है, 2011 से 2020। तो बच्चे ज्यादा वैक्सीन ले रहे हैं तो मीजल के केसेस कम हो रहे हैं। तो ये एक कॉम्बो चार्ट की एग्जाम्पल है। तो ये इस तरह से हमारा सेशन जो ये प्रैक्टिस वाला था वो भी एंड होता है। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग डाल सकते हैं अपने चैट बॉक्स में, या अगर कुछ और फीडबैक देना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट इससे बेहतर क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। कि 2 मिनट हेरा कह रही है यूट्यूब वीडियो शेयर कर दूं। ठीक है, मैं जो प्रेजेंटेशंस मैंने बनाई हैं और एक्सेल फाइल जो है वो मैं वरीशा से शेयर कर दूंगी। तो उस प्रेजेंटेशन में मैं और भी यूट्यूब की लिंक्स डाल दूंगी। अच्छा, सादिया यूब कह रही हैं कि इंफॉर्मेटिव सेशन, व्हाट वाज वेबसाइट फॉर डेटा यू मेंशन। तो वो जो प्रेजेंटेशन है ना, उसके लास्ट स्लाइड में वेबसाइट्स का लिंक है, तो मैं वेबसाइट शेयर करूंगी वरीशा को, तो वो आप लोगों से शेयर कर देंगे। चले, मेरे एंड से सेशन हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो एंड में वरीशा आपकी तरफ है, ओवर टू यू। Thank you so much, Dr. Javeria, for such an engaging and insightful session. And I'm sure we all have learned a great deal about how to make our research more impactful, more effective data visualization. Everything was great, the practical, like the whole thing was very great. And on behalf of the whole IMIT team, we truly appreciate the time and effort you put into guiding us today. And we really hope to carry these lessons forward and have more sessions with you, more insightful sessions. And if there's some feedback for students about different sessions, I'll get them to you. And I'll share the link with all the students who were with us today. So thank you so much, Dr. Javedia. A very, very amazing session from your end. Thank you. वेलकम। So I guess that's it for today, everyone. And I hope everyone's done with their questions. We'll end the meeting here, and I hope you all had a very good time. So thank you, everyone, and you can now leave the meeting.